Hi Dipanshu, how are you? Hello, morning, sir. Good morning. I'm good, sir. How are you? All good, all good. Okay, so what we have planned for today? सर बेयरिंग करनी थी. Bearing, right, right, right. एंड सर मैंने ना वो सेकेंड एडिशन वाली बुक मंगवा ली थी उसकी. Soft, soft copy, soft copy सर की हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी है. सर हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी तो फिर सर उसके अंदर ना कुछ हम्म, चीज़ें शायद और एक्सरसाइज अलग है. अलग है. जैसे कि मेरे पास यस वो सर. मेरे पास वो बुक तो है नहीं. कुछ मुझे सर पिक्चर्स भेज दिया करो, जैसे कुछ यस जो सर भी मैं अलग. हम्म. यस सर आपको ना नेक्स्ट टाइम से पिक्चर्स भेज दूंगा उसकी. राइट, राइट. तो जो भी उसमें करना तो रहेगा वो उसमें से कर. अलग है. हम्म. यस सर. So let me share the screen. So today we will be doing bearing. Bearing is very important and very interesting topic. Okay, can you see the screen? Screen देख पा रहे हो? यस. Okay, right, all good. Okay, so bearing is basically, see, whenever we walk on road, so we require certain direction, isn't it? Like if we want to go to school, we are on road, so we have some direction in our mind, right? We have to go left, right, यस सर. east, west, north, right? There are four direction basically. Fine. यस So uh, but like when we walk on we never walk, but if ship want to navigate, right? Ship or aeroplane, if they want to navigate, so how they navigate? Because there is no road or road map or some other things, you know, described on their path. So how do they navigate? Are you getting this? Means, see, whenever a man is on earth, right? So on earth we get certain path. We have some roads to walk over, right? So we know the direction properly, where we have to take turn, how to approach, from home to school. How do we approach home to school, right? We have to go this way. So there is the direction is सर. very much clear on road, right? But what about in water or air? Because aeroplane, navigate in air, space, not space, air, and ship on water, right? So how do they navigate? So based on bearing concept, they navigate, because bearing is a idea from which the ship and aeroplane can navigate. So what is bearing? Okay, so bearing is work on, four direction. How many direction we have? कितने डायरेक्शन होते हैं? फोर. फोर डायरेक्शन होते हैं. तो कौन कौन से डायरेक्शन है वो? सर फोर. यस, यस. सो व्हाट आर दोस? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. Perfect. So ideally this is north, right? This is south, and this is east, and this is west, right? So on compass, compass, right? So on compass, these four direction are given, and Yes. also like on compass, if you talk about, we have more direction which are in between them. They are called as no northeast, east, south, you know south, west, west, north, right? So these are basically some other direction given on the compass. But see, based on compass, like the ship sailor, right? Ship sailor or the commander, we can say, so they work on this compass to navigate themselves, right? If suppose on water the person is here, right? The ship is here,
The ship is here, right? This look like ship. Yeah. So ship Yes, is sir. here. So if this ship want to come over this point, right? So how do we define the path? This is the ship, right? How do we define the path? So that's important because there is no specific roadmap given to that, right? We just have compass, so we can work on the angle. If we have just compass, like if I want to, if I'm here on this point, right? On this point, let's say on origin itself, if I'm here, I want to move south. So in what direction I should move, right? This is east, this is south, this is now north. So basically we need some reference point, we need some reference direction through which we can measure the angle, right? So the reference direction is basically north. Always remember, the reference direction is north. What is the reference direction? North. Sir, north. Yes. So we always measure the angle with respect to north. See, so this is the ship A, and it want to move to place B on the river, right? On the sea, we can say ocean. So if suppose this is the ship, so this is at some point at A. Now this ship want to move to B, right? This ship want to navigate and want to reach point B, right? So what is the reference direction? As I said, the reference direction is north. So by what angle it should deviate from north to get to reach out at point B? Are you getting what I'm saying? See, at what angle the ship should deviate? Are you getting? So the angle must be measured from Yes, north. sir. The angle must be measured from north. So north is already described here. North is always, in this direction. Whenever we stand, the north is, that direction. So Straight. yeah, straight in front of us. So that is basically north direction. And on compass also, the north is given. We can understand where is the north direction, right? So from north, it should deviate some angle theta so that it can reach point B, right? So this angle theta is called bearing, right? This angle is called bearing. Are you getting this? Means if suppose I want to move point C here, okay? I want to move at point C. So at what angle I should deviate from the starting point so that I can reach point C, right? So that is basically this angle. If I connect these 2 points, so the angle would be what? This would be our required angle, right? This would be our required angle now. Are you getting this point? Yes, sir. तो आप पॉइंट सी पे अप्रोच कर सकते हो, राइट? इफ आई वांट टू मूव पॉइंट डी, लेट्स मेक अनदर डायग्राम. So if suppose I am standing here, right, and I want to reach point B, how would you travel or what would be the angle? So what we'll do, we first draw. See, I want to move from A to B, right? This is the objective. So what first thing you will do here? What first thing you will do? You will draw the reference direction, right? You will draw the north. So north is this drawn at point A. So this is north direction. Now I want to move towards B, right? So what would be the angle of bearing here? What would be the angle of bearing? So as I said, the angle will always be measured from north and in clockwise direction, not clock, and in clockwise direction.
Okay, so these two things are important. Draw north first and measure the angle in clockwise direction. So these two things are important. So in order to move from point A to point B, we have to do these two things. First, you have to draw north at point A, and you have to move in clockwise direction so that you approach point B, right? So this is the two important things we required here. So when we connect A and B here, right? So this should be our path. This should be our path. This is the required path. Are you getting this? This is the required path. But how do we define this path? Yes, sir. So how do we define this path? So this path is defined with this angle, okay, which is theta, right? Fine. Yes, sir. Okay. So see, in this course of navigation, we can have angle between 0 to 360 degree. Do you agree with this? We can have angle from 0 to 360 degree, right? So Yes, sir. we always measure the angle in three in three numbers, right? We have to write all three numbers. If suppose this is obviously more than 180, means this is going to be 235 or anything else, like around 3 digit number. But if suppose we are at point A and I want to move point B, right? So what would be the angle of bearing here? So what we'll do, we'll simply draw the north at point A, right? And we'll connect AB. So Yes, sir. what would be the angle of bearing here? The angle of bearing would be this, right? Yes, sir. So this can be less than 90 degree, means this will be less than 90 degree. Let's say 45. Okay. So the angle of bearing is 45 degree, but we don't write 45 degree. What we write? We write either 045 degree. We include 3 digits by putting 0 in the beginning, or we write 45t. Okay, so this shows the angle of bearing. सर टी का मतलब True north, T is true north. Like this is north direction. So the meaning is true यस सर north. Okay, from north we are measuring the angle. Understood the concept? यस सर Okay, now let's move to. Uh, should I explain you the solved example also? यस सर Okay. 1-0 हाँ, ओपन कर लो. कर ली सर हाँ, तो देख लो आप. एग्जाम्पल भी बताना है, सॉल्व एग्जाम्पल. आप कभी कभी पूछते हो ना अच्छे से. एक्सप्लेन कर दूं? 1 सेकंड सर ओके. यस सर क्या करना है? एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूं मैं? सर यस सर ओके, फाइन. सो एग्जाम्पल आप ओपन किए हो, राइट? ओके, लेट मी शेयर दैट स्क्रीन विथ यू. वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने में इजी पड़ेगा.
अच्छा, बेयरिंग का कॉन्सेप्ट आप समझे ना? व्हाई वी यूज बेयरिंग? यस सर। बताओ आप, व्हाई वी यूज बेयरिंग? सर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। For navigation purpose. Navigation of ship and aeroplane depend on bearing because there is no roadways on these medium, right? यस सर। So for navigation purpose, जैसे आप हिल पे भी जाते हो, जहाँ पे भी रोडवेज नहीं है, आप ट्रैकिंग करते हो, राइट? ट्रैकिंग किया है आपने कभी? बहुत दिन हो गया होगा, है ना? यस सर। हाँ, तो जब ट्रैकिंग करते हैं तो वहाँ पे रोडवेज होता है? नहीं होता। तो हम क्या लेकर जाते हैं वहाँ पे? कंपास लेके जाते हैं, सर यस सर। right? So compass के according we यस just use the angle of bearing to navigate ourselves. Okay. So now look at this question. So the question is, an aeroplane departs A and flies on a 143 course of 368 किलोमीटर. देखिए, आप ध्यान से देखिए, पॉइंट ए पर अपना ये एरोप्लेन है, ठीक है. डिपार्ट्स ए, यस सर। एरोप्लेन डिपार्ट्स ए एंड फ्लाइज ऑन 143, ये क्या है? बेयरिंग है. ओके, 143 डिग्री. तो देखिए, आप नॉर्थ से मेजर होता है. बेयरिंग कहाँ से मेजर होता है? हमेशा नॉर्थ से ही मेजर होता है, ठीक है. तो नॉट। हाँ, कितना बेयरिंग दिया हुआ है? 143 डिग्री. यस समझे आप? तो यही एंगल है. तो अप्रोक्सीमेटली आपको क्या अप्रोक्सीमेट एंगल बनाना है. लाइक वी नो दैट 143 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, so it is going to be more than 90 degree, right? So like this is 90 degree here, so it is going to be more than that. यस। तो आपको एक अप्रोक्सीमेट बनाना है, ऐसा नहीं कि आप रफली बना दोगे. जैसे आप रफली बनाओगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आइडिया ही नहीं बैठेगा फिर. समझे? तो आपको एक रफली डायग्राम बनाना है, लेकिन दैट मस्ट बी क्लोज टू द ट्रू डायग्राम. ओके, इट मस्ट बी अप्रोक्सीमेट डायग्राम. सो इफ वी आर ट्रेसिंग एन सर एंगल. थोड़ी ये हाँ, बोलिए. छोटा है थोड़ा बहुत. बड़ा करोगे? हाँ जी, करता हूँ. ये थोड़ा. आप यस सर। फुल स्क्रीन नहीं करते हो? सर फुल स्क्रीन है। फुल स्क्रीन है. एक मिनट जरा, मैं फिर इधर से जूम करके रखता हूँ. हाँ, तो देखिए, अभी दिख रहा है? थोड़ा तो दिख रहा होगा. अच्छा, यस सर। ठीक है. ये दिख रहा है ना? ये तो बराबर दिख रहा है. इसको आप इसको मैक्सिमाइज कर दो. हो सकता है आपने उसको ही मिनिमाइज रखा होगा. हम दोनों के सर कर लिया। कर लिया ना? हम दोनों के पिक्चर छोटे ही है ना, और ये बड़ा होना चाहिए. यस सर। ठीक है, ठीक है. यस सर। Okay, so the angle of bearing is 143 degree, right? So this is the angle of bearing, and it is supposed to be more than 90 यस degree, सर। right? So we have to draw the approximate diagram. The diagram must be very much close to the true diagram. Okay? तो ये 143 का देखो बना है. कितना यस सर। डिस्टेंस कवर कर रहा है? 368 किलोमीटर, राइट? तो देखो, 368 किलोमीटर कवर कर रहा है. कौन से पॉइंट को रीच कर रहा है? बी को रीच कर रहा है. समझे आप? बी। आप इस तरह से भी समझ सकते. देखो, पॉइंट ए यहाँ पर है, ठीक है. अभी 143 का एंगल मुझे ड्रॉ करना है, तो आप नॉर्थ पहले ड्रॉ करोगे. सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्थ ड्रॉ करोगे, क्योंकि रेफरेंस डायरेक्शन क्या है आपका? नॉर्थ है. तो फिर नॉर्थ से 143 का एंगल आप ड्रॉ करोगे. दिस इज 143 एंड दिस विल बी योर पाथवेज, राइट? ये आपका पाथवेज है. तो इस पाथवेज पे आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो? 368 डिस्टेंस कवर कर रहे हो. समझ रहे हो? ये आपका 368. एक यस सर। पॉइंट पे पहुंचोगे, ठीक है. एक पॉइंट पे पहुंचोगे, लेट्स से दैट इज बी. ठीक है. आप देखो, इसी के जैसा डायग्राम बनते जाएगा वो. हाँ, अभी नेक्स्ट क्या दिया है? देन चेंजेस डायरेक्शन टू अ 233 डिग्री कोर्स, राइट? तो एंगल ऑफ बेयरिंग कितना है? अभी 233 है.
233। तो आप 233 कैसे ड्रॉ करोगे? 233 के लिए आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? 233 मेजर करना, एंगल ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन ड्रॉ करना। ये बात हमेशा ध्यान में रखो, आप किसी भी पॉइंट पे हो, अगर आपको एंगल ऑफ बेयरिंग ड्रॉ करना है तो यू हैव टू ड्रॉ नॉर्थ फर्स्ट, बिकॉज द एंगल ऑफ बेयरिंग इज ऑलवेज मेजर्ड विथ नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो कितना डिग्री है वो? 233 डिग्री है। तो 233 डिग्री अप्रोक्सीमेटली मोर देन 180 होता है ना? मोर देन 180 होता है, तो ये यस सर। ऐसे आप जाओगे। ठीक है, ये आपका पाथवेज हो गया। अभी कहाँ तक पहुंच रहे हो? फर्दर 472 किलोमीटर, है ना? तो 472 किलोमीटर तक चलेगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम एक 472 लेते हैं, विच इज सपोज टू बी मोर देन 368 किलोमीटर, है ना? तो ये सारी चीजें अप्रोक्सीमेट होगी, लेकिन एंगल भी अप्रोक्सीमेट होगा, बट इट शुड बी नियर टू द ट्रू वैल्यू, राइट? ताकि आपको समझने में इजी रहे। हाँ, अभी क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए, we have to find the distance of C from A. तो this is C, ए as they said to town C. तो हम लोग C पे पहुंच गए। अभी ये पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो, इसको आप क्या कर दोगे? कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहली बात। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है? ये AC फाइंड आउट करना है। ठीक है, AC फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या दिया है? द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। तो कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये जरा मुझे बताओ सर। बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? समझे? देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे पॉइंट ए है। ठीक है, यस आपको बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए से सी के तरफ आप आ रहे हो ना, तो इसका एंगल ऑफ बेयरिंग क्या हो जाएगा? और बेयरिंग क्या हो जाएगा? बेयरिंग इट्स सेल्फ एंगल। सो व्हाट वुड बी द बेयरिंग? बेयरिंग एंगल कौन सा है यहाँ पर? तो पहले ए पर क्या करोगे आप? नॉर्थ सर डायरेक्शन करोगे। करेंगे हाँ, उसके बाद AC को आप कनेक्ट कर दोगे। कौन सा एंगल होगा यहाँ पे? सर फिर सर राइट साइड वाला। राइट साइड का जो पूरा एंगल है ऐसा, है ना? ये आपका एंगल ऑफ बेयरिंग हो जाएगा। परफेक्ट। सर तो यहाँ पे भी जो डायग्राम है, आप डायग्राम पे ध्यान से देखोगे sir. अगर, तो आपका एंगल ऑफ बेयरिंग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना? तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ये एंगल एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एनी डाउट हियर? आप पहले देखो, डायग्राम अच्छे से बनाना है। यहाँ पे एकदम डायग्राम बहुत अच्छे से बनना है। अगर डायग्राम में जरा भी गलती हो गई तो फिर फंस जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि फिर सिचुएशन समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक बात तो आप कंफर्म करोगे, आई थिंक दैट इफ यू ड्रॉ नॉर्थ एनीवेयर, राइट, दोस विल बी पैरेलल। यस सर। नॉर्थ हमेशा कहीं पे भी आप ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो। नॉर्थ कहीं पे भी ड्रॉ करोगे वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एग्री करोगे आप? यस सर। राइट। सो यहाँ पे देखो आप, नॉर्थ पैरेलल है, तो कुछ आपको पता चल रहा है? देखो अभी वी आर विल फर्स्ट फाइंड आउट डिस्टेंस। ठीक है, हम पहले डी फाइंड आउट करेंगे, बाद पे हम लोग एंगल और बेयरिंग की बात करते हैं। तो अगर आपको डी फाइंड आउट करना है तो पहले आइडिया समझो क्या है हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? एक ये डिस्टेंस दिया हुआ है, एक ये डिस्टेंस दिया हुआ है ना? और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट? ये एक ट्रायंगल यस सर। दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है जिसके दो डिस्टेंस दिए हुए, दो साइड के लेंथ दिए हुए। हमें तीसरा लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, राइट? डू यू नो अबाउट कोसाइन एंड यस साइन? सर। कोसाइन और साइन रूल पता है आपको? कोसाइन एंड साइन रूल? नो सर। नो सर। अच्छा, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, फिलहाल कोसाइन साइन रूल रहने दो, क्योंकि ये इसमें आ नहीं रहा है। हाँ, इसीलिए शायद वैसा नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन भी उस हिसाब से पूछ, बट कोसाइन साइन रूल विल बी यूजुअली यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक चीज है, एक इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, अब ये दो नॉर्थ डायरेक्शन क्या है?
पैरेलल है। आर यू गेटिंग दिस? ये दोनों नॉर्थ क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ए बी क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन होगा। हाँ, आप मुझे बस इतना बताओ, सर क्या आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो? क्या आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो? ये 233 दिया हुआ है, यस सर। कैसे करोगे? देखो ये एंगल हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, एंगल ऑफ बेयरिंग जो है विच इज 233, ये हमें फाइंड आउट करना है। 233। हाँ, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको ये एंगल पता चल गया यहाँ का, तो सारा काम सॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल सम तो 360 होता है, राइट? टोटल सम तो 360 होता है। यस सर। तो बता दो आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे ये एंगल? अगर ये एंगल पता चल गया तो ये एंगल भी पता चल जाएगा। और आपको मैं एक रेफरेंस दिया हूँ ऑलरेडी कि ये दोनों नॉर्थ क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ए बी क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन होगा। चलिए बताइए अभी आप ये एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? चलो एक सिनेरियो और देता हूँ आपको। ये दो पैरेलल लाइन, इसको सीधा कर देता हूँ। ऑल्टरनेटिव। हाँ, ऑल्टरनेटिव और सर ऑल्टरनेट। इंटीरियर एंगल। यहाँ पे इंटीरियर एंगल बन रहा है ना, ये देखो, ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल क्या होगा? अगर ये दिया हुआ है मान लो 143, दिस इज 143, तो ये एंगल क्या होगा? देखो को इंटीरियर एंगल है ये। आर यू गेटिंग दिस? ध्यान से देखो जरा आप, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसी के साथ में वो इस साइड लाइक दिस। आप सिचुएशन समझ पा रहे हो? यस सर। तो को इंटीरियर एंगल है ना वो, लाइन के एक ही साइड में है दोनों एंगल, है ना? लाइन के एक ही साइड है, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। यस सर। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, सो दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन एंड दीज टू आर पैरेलल लाइन, ठीक है? देखो, तो लाइन के एक ही साइड में है दोनों, को इंटीरियर एंगल। कोई डाउट है इसमें आपको? तो कितना होगा ये एंगल बताइए आप? कितना एंगल होगा? 37। 37 कैसे फाइंड आउट? 37। यस, 180 माइनस 143, राइट? देखो ये सारा खेल ना आपको एंगल, ट्रिग्नोमेट्री, यही दो चीज पे डिपेंड है। ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री और एंगल प्रॉपर्टीज ट्रायंगल का, उसी पे डिपेंड है। तो ये कितना हो जाएगा? 37। तो ये 37 जैसे मिला आपको, कैन वी फाइंड आउट दिस रिक्वायर्ड एंगल? कैन वी फाइंड आउट दिस? यस सर। सो कितना होगा वो? 237, 240, 270, सर 90। 90 होगा ना? अगर वो 90 नहीं भी होता तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, यस। लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता? कोसाइन और साइन रूल को मुझे बताना पड़ता, ठीक है? तो हम बाद में देखेंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन हम देखेंगे बाद में। अगर ये 90 है तो अब तो काम बहुत आसान हो गया ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देन एक ही चीज आता है हमें राइट एंगल ट्रायंगल पे, क्या आता है? पाइथागोरस। तो ये दो चीज हमें पता है, दो साइड्स, तो ये डी निकाल लोगे? डी निकल जाएगा ना? यस सर। तो देखो आप यहाँ पे अभी सॉल्यूशन पे Yes, देख sir. लो, किया हुआ है ऑलरेडी। तो ए से देखो क्या निकाला है, रूट 368 स्क्वायर प्लस 472 स्क्वायर। बात समझ रहे हो आप? यस सर। तो इन्होंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, 598.5 है तो 599 किलोमीटर कर दिया। अबाउट वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे, अबाउट, ठीक है ना? एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है, अबाउट बोल रहा है, ठीक है? तो ऐसे राउंड ऑफ करके भी हम लिख सकते हैं Yes. आंसर। अच्छा, अभी और क्या फाइंड आउट करना था? एंगल ऑफ बेयरिंग फाइंड आउट करना था, राइट? तो ये एंगल तो आपको पता है, यस सर। ये तो पता है 143। एंगल ऑफ बेयरिंग अपना क्या है? ये है एंगल ऑफ बेयरिंग, ये पूरा है यहाँ पर,
ये उसमें से ये पार्ट अपने को पता है, दिस इज 143. कैन वी फाइंड आउट दिस एंगल? कैन वी फाइंड आउट दिस? तो हम लोग ऐड कर देंगे सिंपली बाद में. अभी देखो ना, राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है. अब आपको तो तीनों साइड मिल चुके हैं. यस आपको तो तीनों साइड मिल चुके हैं. यस सर. एंगल फाइंड आउट करने के लिए तो दो ही साइड की जरूरत थी, फिर भी तीनों साइड मिल चुके हैं. तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप ये θ1? सर tan से. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अच्छा यहाँ दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप आइडिया समझो. ठीक है, तो आई देखो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इंक्लूड करेंगे, सो वी विल हैव 472 एंड 368. तो जैसे आप रेशियो लोगे और उसका एंगल फाइंड आउट यस करोगे, सो दैट वुड बी 52.1. तो ये 52.1 आया, और ये 52.1 नहीं है एंगल अपना, मतलब आंसर वो नहीं है. एंगल ऑफ बेयरिंग ये पूरा है, ये पूरा. सो 143 प्लस 52.1, so that is your answer. 152. Are you getting this? So we have to add them to get the final answer. तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे आंसर फिलहाल, तो यही होगा उसका एंगल ऑफ बेयरिंग. समझ पा रहे हो आप? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. लेकिन आपका डायग्राम, योर डायग्राम मस्ट बी करेक्ट. अगर डायग्राम आप करेक्ट बना रहे हो तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 15E. सर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिगो का, उसके अंदर सर है ये कोसाइन और साइन रूल है ना. इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी कहीं होगा. ये. हाँ, तो उसमें मतलब ये इंक्लूड किया होगा. अभी जैसे ये सारे जो क्वेश्चन होंगे ना, इसमें साइन कोसाइन का डिपेंडेंसी नहीं दिया होगा, क्योंकि वो सिर्फ 90 बना दे रहा होगा. मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाए होंगे जिसमें आपको ये एंगल जो है ना, ये 90 आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे में क्या हो, जैसे 90 आया तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. अगर ये 90 के अलावा आता, मान लो कि 70 डिग्री आता, तब कैसे निकालते ये डी, तब ये डिस्टेंस कैसे आता. सो वो कोसाइन रूल सब है. ठीक है, तो करेंगे हम. फिलहाल आप ये एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, ताकि फिर आपके पास एक आइडिया आ जाएगा कि सर ये हाँ सर होमवर्क में कर लूं एक्सरसाइज? हाँ चलेगा. या तो एक दो सम करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि इसके बाद जो है आपका टॉपिक पूरा डिफरेंट है एक तरह से. वो भी वैसे ही है, मतलब उसमें भी एक्सप्लेनेशन नहीं है ज्यादा. आपको दिया हुआ है एंगल, दिया हुआ है क्यूब वगैरह दिया है, उसमें फाइंड आउट करना है. 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा बोलो, क्योंकि उसमें भी वही है एंगल. और सर डाउट्स नेक्स्ट क्लास में. डाउट्स सर मैं डाउट्स ले लूंगा ना नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज के बाद. हाँ सर टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं फिर. हाँ, कौन सा? सर वही 3 डायमेंशनल वाला. 3 डायमेंशनल का, ठीक है चलो. सो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, तो आपको वन बाय वन में Yes, एक्सप्लेन करते चले जाता हूँ, फिर आप उसमें नेक्स्ट क्लास में आप सॉल्व करके रखोगे, कुछ तो एक आइडिया रहेगा कि क्या क्या है. हाँ, सो 3 डायमेंशनल मतलब जैसे अभी तक हम देखो ऑन पेपर, अभी हमने जो भी एंगल वगैरह बनाया है, जैसे कि ये एक एंगल बनाया, ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल है, राइट, बिकॉज दिस एंगल कैन बी ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन. ठीक है ना. अभी मान लो ये एक्स है, अभी ये वाई एक्सिस है, सो दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल फिगर. इफ सपोज दिस इज ओरिजिन, राइट. ठीक है, चलो अभी ये पूरा डायग्राम मैंने बना दिया. अभी ये ओ से यहाँ पे पी है मान लो, ठीक है, तो ये जो ओपी है, लेट्स से दिस इज 45 डिग्री. फाइन, दिस इज 45 डिग्री. सो this type of figure is called 2D because we have 2 dimension involved in it. What are those 2 dimension? Along x direction or along y direction. ठीक है, तो ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट, not object, any figure like what we have been learning under geometry, like line है, सर्कल है, ठीक है, और क्या क्या पढ़े आपने, रेक्टेंगल पढ़ा आपने, है ना, फिर क्या पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, है ना,
तो ये सारी चीजें आप पढ़ते आ रहे हैं. So these are basically two-dimensional figure because this can be drawn on paper. This can be drawn on XY plane. ठीक है ना? इसको हम XY plane बोलते हैं. आपके पास जो पेपर होता है उसको हम XY plane बोलते हैं. Why? Because we have only two direction. One is along X direction and other is along Y direction. बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारे जो फिगर है, सर्कल, रेक्टेंगल, लाइन, square, all triangle. Okay, so these are basically two-dimensional figure because that can be drawn on XY plane. ठीक है. अभी आप मुझे बताओ थ्री डायमेंशनल क्या होते हैं. What is थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स? कोई ऐसा एग्जांपल जो दो जो थ्री डायमेंशनल हो. सर क्यूब. क्यूब हो गया. इतना क्यों सोच रहे हो आप? हम लोग सब थ्री डायमेंशनल है. ये पेंसिल थ्री डायमेंशनल है. जितने भी ऑब्जेक्ट है सारे के सारे थ्री डायमेंशनल है ना. क्योंकि आप उसको ऑन पेपर आप बना नहीं सकते. अगर आप पेपर पे बनाते उसको कट करोगे तो 3D थोड़ी लगेगा. 3D नहीं रहेगा ना. वो तो 2D ही है एक तरह से. तो उसको हम सिर्फ बना सकते हैं, रिप्रेजेंट Yes. कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. बट दैट इज नॉट योर एक्चुअल object. That is not your actual object. So if suppose we talk about cube, तो ये क्यूब बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है. हम लोग स्कूल में सीखे थे. आप ये ऐसा बना लो और उसके बाद है ना ऐसे करके आप बना डालो. दो स्क्वायर बनाओगे. Yes, sir. और उसके बाद उसको कनेक्ट कर दो. उसके वर्टेक्स को कनेक्ट कर दोगे तो आपका क्यूब बन जाएगा. ठीक है. तो आप ये सिर्फ बना सकते हो. लगेगा वो 3D है बट ऑन पेपर इट इज नॉट 3D. सो व्हाई दिस इज थ्री डायमेंशनल फिगर? बिकॉज एज आई सेड we like in 2D there are only two direction involved, X and Y. Now in 3D we have three dimensions involved, right? So if this is X, this is Y, this is Z. ठीक है. So we have three dimension involved. तभी वो 3D बनेगा. आप एक 2D का तो डायग्राम बना सकते हो लेकिन जब तक उसको हाइट नहीं देते हो, आप हाइट नहीं देते हो तब तक वो ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल नहीं बनेगा. राइट. लाइक दिस बेस इज स्क्वायर. आर यू गेटिंग दिस? दिस बेस इज स्क्वायर इन XY plane. You can see that this base is square in XY plane, but until you give the height, right? So this is height now. Until you give the height to that square, it won't become three dimensional object. तो जैसे ही आपने हाइट दिया तो हाइट क्या होता है? Z होता है ना. हाइट और डेप्थ जो हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए आपको एक तीसरा एक्सिस की जरूरत पड़ता है. राइट. थर्ड डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है. सो दैट थर्ड डायरेक्शन इज डिस्क्राइब बाय दिस Z. ओके. तो जैसे ही आप उसको हाइट देते हो, किसी भी टू डायमेंशनल डायग्राम को आप हाइट देते हो, सो दैट बिकम थ्री डायमेंशनल फिगर. ठीक है. तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि आप 2D से 3D कैसे बना रहे हो, तो आपको एक थोड़ा अच्छा आइडिया रहेगा दिमाग में. अदरवाइज तो आपको क्यूब तो मैं ऐसे भी बना के दिखा देता, आप समझ जाते. लेकिन क्या क्या उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या है. टू डायमेंशनल में XY डायरेक्शन होते हैं, थ्री डायमेंशन में XYZ डायरेक्शन होते हैं. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके. अच्छा, अभी मैं आपको एक यहाँ पे जो सॉल्व एग्जांपल है वही बता देता हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए, तो आप एक्सरसाइज सब सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. बाकी ज्यादा थियोरी तो है नहीं इसमें, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा. दिख रहा है आपको ये? Yes, sir. तो इसमें देखो आप क्यूब दिया हुआ है, लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो क्यूब मतलब क्या होता है? जिसके हर एक एज 10 सेंटीमीटर के हो. राइट. द क्यूब whose each edge Yes, sir. of 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर हो गया, हाइट भी 10 सेंटीमीटर हो गया और विड्थ भी 10 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है. मतलब हर एक एज 10 सेंटीमीटर के हो गए. फाइंड द एंगल बिटवीन डायगोनल AB ऑफ क्यूब एंड वन ऑफ द एजेस एट B. ठीक है. तो डायगोनल आप
कैसे बनाओगे? ए बी कहाँ पे है? आप ये बना लो ए बी, है ना, ये ए बी हो गया, दिस इज डायगोनल। बात समझ रहे हो? एक कॉर्नर का दूसरे मतलब अपोजिट कॉर्नर पे आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप एक बॉक्स का एग्जांपल ले सकते हो, यस सर। आप एक माइंड में इमेजिन कर सकते हो एक आपके रूम का एग्जांपल, ठीक है, जहाँ पे आप बैठे हो, तो उस एक आइडिया आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एक डायगोनल है, डायगोनल ए बी, एंड व्हाट वी हैव टू डू, we have to of the cube and one of the edges at B। तो कहाँ पे B पे कौन कौन से एजेस हैं? there are three edges, 1 2 3। कितने एज है B पे? दिख रहा है आपको? 3। 3 एजेस है ना, B पे से आपको 3 एज यस। दिख रहा है, क्यूब के 3 एज है। तो कोई भी एज ले लो आप, तो इसमें क्या बोला है, ये एज ले लिया है इसने, ठीक है ना, समझ रहे हो आप? ये एज ले लिया है। यस सर। तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, बस। अब जब आप पिक्चर प्रॉपरली इमेजिन कर लेते हो तो आपका सारा काम खत्म हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो है, ये एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? एक थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, हाउ वुड यू फाइंड दिस एंगल? बीसी का लेंथ कितना दिया हुआ है? सर 10। वेरी गुड। तो कुछ आइडिया आ रहा है वहां से? अगर हमारे पास, चलो एक ट्रायंगल तो पहले कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आप एक ट्रायंगल बनाओगे तभी आप सोच सकते हो एंगल और साइड्स के बारे में, है ना। अगर ट्रायंगल ही नहीं है तो आप कहाँ से सोचोगे? तो ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब एसी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने एसी कनेक्ट कर लिया, तो बहुत सारी यस। चीजें यहाँ पे अभी हिडन है, बहुत सारी चीजें हिडन है, जैसे कि ये सारे एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे, क्योंकि स्क्वायर है। ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, है ना, राइट। ये सारे यस एंगल सर। क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर एक चीज आप बताओ मुझे, आप एसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? सर एसी। यस, कैन वी फाइंड आउट एसी? यस सर। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप? सर सिर्फ पाइथागोरस से। पाइथागोरस, वेरी गुड। क्योंकि ये एसी, ये भी 10 है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक एज ऑफ क्यूब इज बेसिकली 10 हियर, एंड ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। हाँ, तो ये 90 डिग्री है, तो आप ये डायगोनल, इसका स्क्वायर का डायगोनल आप फाइंड आउट कर सकते हो, द स्क्वायर विच इज ऑन बेस। तो ये एसी आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √100 प्लस 100। आर यू गेटिंग? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? यस सर। √200। √200 को आप 200। क्या लिख सकते हो? 10√2, ठीक है। अच्छा, जब ये AC आपको पता चल यस सर। गया 10√2 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये डायगोनल का लेंथ ही फाइंड आउट करना है? नहीं, डायगोनल का लेंथ नहीं, हमें एंगल फाइंड आउट करना है, राइट। ये एंगल फाइंड आउट करना है, यस। परफेक्ट। तो अभी ये तो हमें पता चल गया, AC तो हमें पता चल गया, ये BC भी हमें पता है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे ये एंगल थीटा? कैसे फाइंड आउट करोगे? सर 10 से। नहीं, tan लगाओगे, ओके, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, बट tan लगाने के लिए यू शुड हैव राइट एंगल ट्रायंगल। डू यू एग्री विथ दिस? यू शुड हैव राइट एंगल ट्रायंगल। यस सर। तो क्या ABC राइट एंगल ट्रायंगल है? पहले ये आंसर करो। यस कहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है? सर सी पे। वेरी गुड। तो आप बात समझ रहे हो ना, क्योंकि आप एक परपेंडिकुलर लाइन है, अगर आप अर्थ मतलब जहां पे आप हो, मान लो वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन है ऐसा, ठीक है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन आपके और सरफेस पे है, तो ऐसे आप कोई भी लाइन ऑन द सरफेस ड्रॉ करते हो, कोई भी लाइन ड्रॉ करो सरफेस पर, वो सारे के सारे लाइन इसके ऊपर 90 डिग्री ही बनाएगा। आप बात समझ रहे हो इस चीज को? यस सर। आप कोई भी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो,
ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, ईच लाइन विल मेक 90 डिग्री विद द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस, राइट। तो यहाँ पे ये सी के ऊपर ये सरफेस पे परपेंडिकुलर है, इट मींस AC और एनी सच लाइन, कोई भी लाइन लोगे आप जो सरफेस पे ड्रॉन है वो उससे 90 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल सी यहाँ पे BCA इज 90 डिग्री, फाइन, एंगल BCA इज 90 डिग्री। जैसे ये 90 डिग्री पता चला, आप tan लगा दो, बात ही खत्म हो गई। तो tan थीटा आप लगाओगे तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट कितना है, tan√2, एडिशन। tan√2 अपॉन एडजेसेंट यस सर। tan है। तो आंसर क्या हो गया, √2 हो गया। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √2, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया है, निकाल लिया उन्होंने सब, ठीक है ना। तो 54.7 आएगा। बात समझ रहे हो आप? आपको ये प्रोजेक्शन बनाना है प्रॉपरली, डायग्राम सही से बनाना है, फिर आप इजिली कर सकते हो, ओके, यस सर। राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, that is about projection. Yes, shadow line, that is called projection. आप जब खड़े होते हो, मान लो 12 बजे या कोई टाइम पे खड़े हो गए, तो आपका एक शैडो बनता है ऑन सरफेस, ठीक है ना, आपका एक शैडो बनता है, दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये AB है ना, ये BG, सॉरी BG है, ये AG है, तो इन सब का एक शैडो बना है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ये क्यूब है, राइट, दिस इज अ क्यूब, दीज ऑल आर एजेस, जैसे नाम नहीं दिया यहाँ पे, नाम है क्या, नहीं नाम है बट कट गया, ओके। तो ये F है, F यहाँ पे ये F है, ठीक है। जैसे GF है, हाँ, BG, GH है, AG है, BG है, ऑल आर दीज आर लाइंस बेसिकली, ठीक है। तो जैसे अभी GF इज प्रोजेक्शन ऑफ BG, उसको आप शैडो की तरह समझ सकते हो, वो एक शैडो बनता है, ठीक है। अगर लाइट सोर्स यहाँ पर है, मान लो लाइट सोर्स यहाँ पर है, तो कैसे दिखेगा वो आपको समझना है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं, समझो यहाँ पे एक लाइन है, हाँ, और ये सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे दिखेगा अर्थ सरफेस पे, ये लाइन है मान लो, तो इसका प्रोजेक्शन कैसे दिखेगा, तो इसका प्रोजेक्शन जो है और शैडो इज बेसिकली दिस, ठीक है ना, ये यहाँ पे ऐसे आएगा, यस सर। सो दिस इज द शैडो, दिस इज द शैडो और कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे ऐसे आप समझ सकते हो, जो सोर्स लाइट है दैट इज जस्ट ऑन द टॉप ऑफ द फिगर, तो इससे आपको थोड़ा इजी लगेगा समझने में, ठीक है। तो जैसे टॉप पे है तो उसका प्रोजेक्शन एक शैडो बनाएगा, है ना। लाइट को अगर ऑब्जेक्ट से अगर आप ऐसा शील्ड करते हो, इट मीन्स इट विल क्रिएट शैडो टू दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आप लाइट को जैसे रोकते हो, घर पे भी आप लाइट है, लाइट को आप रोकोगे तो आपका शैडो बनता है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो बस यही बात है। तो प्रोजेक्शन इज बेसिकली शैडो। तो अभी यहाँ पे बात शैडो तक ही नहीं होगी ना, बात तो होगी एंगल और लाइंस के ऊपर आ जाएगा। तो अभी ये जब शैडो बना है ना, AG का शैडो क्या है, GE, यस। BG का शैडो क्या है, BG का शैडो क्या है, GF। GF। तो इन दोनों के बीच का, GF। यस, सो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, लाइक दिस एंगल, सो दीज आर कॉल्ड, यू नो, प्रोजेक्शन एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू कैन से, ठीक है। तो ये एंगल सब इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम में आप इधर उधर पाइथागोरस ये वो सब लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वगैरह लगाओगे, एंड यू कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड थिंग, ठीक है। बाकी कुछ इसमें है नहीं, बस आप ये समझो कि प्रोजेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, बस, ओके। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपको बाद में भी समझने पड़ सकता है
क्योंकि ये नॉर्मली 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो 3 डायमेंशनल आपको यहीं पे खत्म नहीं होगा, 3 डायमेंशनल आपको बहुत आगे तक जाने वाला है। अभी तक तो हम सिर्फ लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर यही सब पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल पे ज्यादा आप नहीं पढ़ोगे। मतलब अभी इसमें 12th तक भी आप स्फीयर, है ना, और कोन, पैरेललोपाइप, सिलेंडर, यही सब पढ़ोगे। 10th में भी यही सब पढ़ोगे, लेकिन इसके बारे में आगे बहुत ज्यादा डिटेल है। ठीक है, ओके। सो एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो पहले तो आप लाइन समझते हो, व्हाट इज लाइन? लाइन इज दिस, ओके। व्हाट इज प्लेन? यस सर। प्लेन समझते हो? इसके ऊपर भी ड्रॉ कर देना। नहीं, व्हाट इज प्लेन? प्लेन क्या होता है? देखो, आपको मैं ऐसे बताता हूँ। जैसे कि ये मान लो, ये दिख रहा है, पेज दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये एक यस प्लेन सर। है, ये एक प्लेन है, ठीक है। दिस इज प्लेन, राइट। लाइन क्या है? एक लाइन ऐसे मैंने ले लिया, ये एक लाइन है, ठीक है। ये एक लाइन है और ये एक प्लेन है, ये लाइन है। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सी द टॉपिक इज द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। सो दिस इज प्लेन, सॉरी, दिस इज लाइन, दिस इज लाइन एंड दिस इज प्लेन। तो प्लेन और एंगल, मतलब प्लेन और लाइन के बीच का एंगल क्या है, दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, ठीक है। तो क्या करोगे आप? यस सर। इसका एक प्रोजेक्शन बना लोगे, इस 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 लाइन का। यू विल ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन, right? You will draw projection on the plane. So this is a line, the projection is this, right? Which is shadow. This is a line, the projection is this. Fine. तो जो भी एंगल ट्रेस हो रहा है, so that is called the angle between line and plane. बात समझ रहे हो आप? यस सर। तो अगर इसको मैं यहाँ पे डायग्राम में समझाऊं, तो ये एक प्लेन है समझो, ठीक है। ये एक प्लेन है और यहाँ पे एक लाइन है। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या है? यस। So what we'll draw the projection of this line on the plane. So this is the projection of the line on the plane, right? And this is the required angle between line and plane, right? Clear है? यस सर। Very good. So this must be projection, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है जो एक्सप्लेन कर दूं आपको, ये है एंगल बिटवीन टू प्लेन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल बिटवीन टू प्लेन। So this is the diagram here, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो प्लेन्स आपको दिख रहा है? दिख रहा होगा, पक्की बात है ना? यस सर। तो प्लेन कौन सा है? एक ये प्लेन है, पाई 1, पाई 2। नॉर्मली प्लेन को पाई से बताते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लेन है, जो एक पेज होता है ना, पेज, ऐसे समझो, पेज इज प्लेन, ठीक। जो एक्स वाई प्लेन होते हैं, so that is just a page which is drawn on the page, right? So xy plane. So this is basically two planes here, right? We have to find out the angle between these two planes, angle between these two planes. तो क्या करोगे, देखो आप पहले तो इन प्लेन। प्लेन का एक इंटरसेक्शन क्या है? व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन? सर पी। नहीं, इंटरसेक्शन क्या दे रहा है आपको? कोई भी जब दो प्लेन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या दे रहा है?
लाइन दे रहा है। आप जब दो प्लेन को इंटरसेक्ट करोगे तो क्या दे रहा है, देखो लाइन दे रहा है, सीधी सी बात है ना। जब दो प्लेन इंटरसेक्ट यस होते सर। हैं, जब दो प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इंटरसेक्ट कहाँ होते हैं, उन लोग एक लाइन पे इंटरसेक्ट होते हैं। आप समझ रहे हो बात, एक लाइन पे इंटरसेक्ट होते हैं। तो इस लाइन पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लो। नाउ वी आर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द प्लेन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल जाके आप वेक्टर पढ़ोगे डिटेल में। वेक्टर एक टॉपिक है जो आपको आगे बहुत लंबा लेकर जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर में ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, प्लेन लाइंस, ठीक है ना। तो ये जो इंटरसेक्शन दे रहा है प्लेन्स का, वो क्या है, एक लाइन है, ठीक है। आप ये बात समझ रहे हैं अच्छे से। तो एक लाइन है, इस लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लिया है P, ठीक है। इस लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लिया है P, और एक P लेने के बाद क्या किया हमने, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है ऑन P, ए की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा थोड़ा रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे। आप एक इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो कि ए को मीट हो रहा है, समझ रहे हो। इस लाइन के ऊपर यस बेसिकली सर। यू हैव टू ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन। बस आप इतना समझ लो सिंपल भाषा में, ये जो एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो। बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे थोड़ी ड्रॉ होगा, लेकिन ये जो लाइन होगा वो बेसिकली क्या होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन पे होगा। ये जो लाइन होगा ये एक प्लेन पे होगा, समझ रहे हो। चलो इसको मैं थोड़ा ये रिवर्स लिया हुआ है, ये रिवर्स रिवर्स समझा है, मतलब ये बी से परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ठीक है। तो हम बी से ही कर लेते हैं। देखो ये बी से क्या किया है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है, दिख रहा है। और ये जो बीपी है दैट इज ऑन प्लेन, दैट इज ऑन प्लेन, समझ रहे हो आप, दैट इज ऑन प्लेन। और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन प्लेन। डाल दो, यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, किस पे, लाइन पे। इस लाइन पे ही आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो। आप ध्यान में रखो इस चीज को, ये दोनों लाइन, ये जो है बीपी एंड एपी, ये दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो ये एक एंगल बनाएगा विच इज कॉल्ड थीटा, एंड दैट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। आप समझ रहे हो क्या बात। रुको, एक बुक है, बुक, ठीक है ना, एक बुक है, नोट, कोई बुक है, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, कुछ भी है आपके पास। तो जब आप उसको देखो, एक ओपन करो उस बुक को, हाँ, उसमें देखो ऐसे एक प्लेन है ना, ये दो प्लेन हो गए ना, दो प्लेन। हाँ, ये बीच में इसका इंटरसेक्शन क्या है, यस सर। इसका इंटरसेक्शन क्या है, देखो आप, एक लाइन दे रहा है पूरा का पूरा, है ना, थोड़ा मोड़ दो, थोड़ा मोड़ दो ताकि यस एंगल सर। बने। तो उसके बीच का क्या है, एक लाइन दे रहा है पूरा का पूरा, लाइन दे रहा है, लाइन दे रखा है ना, उसका इंटरसेक्शन लाइन दे रखा है। तो उस लाइन पे आप यस उन सर। दोनों प्लेन से, उस लाइन पे उन दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस लाइन पे आप दोनों प्लेन से यस सर। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। जैसे कि आप एक पॉइंट बी ले लो यस सर। कोई भी प्लेन पे, और बी से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कर दिया। फिर आप पी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ यस करोगे सर। तो ए को इंटरसेक्ट होगा, तो वही ए पी बी आपका एंगल हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन। यस सर। ऐसे ही हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब ये एंगल आपका ऐसे ऐसे नहीं होगा, आप समझ नहीं रहे हो। परपेंडिकुलर क्यों रिक्वायर्ड है, परपेंडिकुलर क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप अगर परपेंडिकुलर नहीं डालोगे तो आप ऐसे वैसे डायरेक्शन में जाओगे, अलग डायरेक्शन में जाओगे, एंड दैट वोंट गिव यू द एग्जैक्ट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। फाइन, आप ये सब थोड़ा इमेजिन करोगे घर पे, यस सर। वैसे क्वेश्चन सब ट्राई करोगे तो डेफिनेटली यू हैव टू इमेजिन दैट। ओके, सो वी आर स्टॉपिंग हियर। Fine. I hope you understood the whole thing, whole concept here, and come up with the doubts. यस सर। ठीक है।
यस सर। ओके, बाय बाय। बाय सर।